Hello, I'm Abhishek, and in this video we are going to discuss the first set of reasoning section of slot second of CAT 2019 paper. Fine. So here goes the first question. In the table below, the check marks indicate all the languages spoken by 5 people. PQRST are their names. Fine. So we will use short form. So instead of Paula, Quentin, Robert, Celine, Terence, we will use PQRST only. So from this table we can see that P can speak C language and E language, that is Chinese and English. Q can speak D and E languages, Dutch and English, and so on. So this table was given to us. Apart from that, the other information are these 5 people form 3 teams, 1, 2, and 3. Each team has either 2 or 3 members. A team is said to speak a particular language if at least one of its members speak that language. So for example, suppose in team 1 we have P and Q. Now P can speak which 2 languages? C and E, and Q can speak D and E. So overall we will say that team 1 can speak C, D and E, these 3 languages. Fine, this was given to us. Then some conditions were there. Each team speaks exactly 4 languages and has the same number of members. So, each team can speak 4 languages, exactly 4. Fine. And the number of members were also same in each of the team. Second condition was that English and Chinese are spoken by all the 3 teams. Basque and French by exactly 2 teams, and the remaining languages, Arabic and Dutch, by exactly 1 team. None of the teams include both Q and R. P and S are together in exactly 2 of the teams. Robert is in team 1 and Q is in team 3. So student, these all were the conditions. Now, first of all, if you want to learn something from this question, तो आपको क्या करना है? वीडियो को यहीं पॉज कर देना है, and सबसे पहले you should try the set. आप एक बार कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की. In case आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है, then आप आगे देखिए, और in case आपसे सॉल्व हो भी जाता है, तो भी आप चेक करिए कि आपका मेथड ज्यादा बेटर था या जो हम बताने वाले हैं वो ज्यादा बेटर था. ठीक है, तो हो सकता है आपको कुछ नया मेथड सीखने को मिल जाए. फाइन. तो अब ये सारी कंडीशन थी. अब आगे चलते हैं, सेट को सॉल्व कहां से स्टार्ट करना देखते हैं. ओके, सो बच्चों जो भी कंडीशंस थी एक बार सबसे पहले उन पे ध्यान देते हैं. तो मैंने शॉर्ट में लिख दी है सारी कंडीशंस यहाँ पे. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन वाज 2 or 3 members in each of the team and same number of members in each of the team. Each team can speak exactly 4 of the languages. E and C, English and Chinese, well, these 2 languages जो थी आपकी C and E, Chinese and English, all the 3 teams will be speaking these languages. ठीक है, तो C लैंग्वेज आपकी टीम 1, टीम 2 एंड टीम 3 तीनों में होगी, एंड E लैंग्वेज भी आपकी तीनों टीम्स में होगी. अपार्ट फ्रॉम दैट B एंड F दो टीम्स बोल सकती हैं, एंड जो रिमेनिंग टीम है A एंड D, वो रिमेनिंग लैंग्वेजेस है A एंड D, वो 1 टीम बोल सकते हैं. राइट. Q and R cannot be together. अब Q और R साथ में नहीं हो सकते हैं. P, S and R together exactly for 2 times. P और S साथ में आएंगे और exactly 2 times साथ में आएंगे. Robert is in team 1. Robert team 1 में है, ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन थी. And Q is in team 3. Q is in team 3. So these were all the conditions given to us. Now कहां से स्टार्ट करना है वो देखते हैं. सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिंक करने की कोशिश करते हैं. See, R is in team 1, and since Q and R cannot be together, so Q cannot be in team 1 then, है ना. और team 3 में क्योंकि Q है, so R cannot be in team 3 for the same reason, because Q and R cannot be together. अब ये हम कर चुके हैं. अब और कोई इंफॉर्मेशन मुझे ऐसे मिल नहीं रही है जिसे we can use directly. हाँ, तो let us try with this condition. P, S and are together exactly for 2 times. अब मेरे को नहीं पता P और S को 2 बार एग्जैक्टली मुझे साथ में रखना है, तो लेट अस अज्यूम कि P और S टीम 1 में ही थे. तो अब टीम 1 में कौन हो जाएंगे? P, S और R पहले से ही है. अब एक बार चेक करते हैं कि टोटल लैंग्वेजेस ये टीम कितनी स्पीक कर पाएंगी. P कैन स्पीक C एंड E, तो C और E कवर होता है यहाँ से. नाउ S कैन स्पीक B एंड E, तो B एंड E कवर होता है. P can speak C and E, sorry. So P can speak C and E, and S can speak B and D. तो S, B और E कवर होता है.
नाउ आर कैन स्पीक ए एंड एफ, आर ए और एफ स्पीक कर सकते हैं। तो नाउ यू विल सी दैट यहाँ पे 5 लैंग्वेजेस कवर हो गई हैं, और जबकि क्वेश्चन में हमको ये गिवन था कि ईच टीम कैन स्पीक एग्जैक्टली 4 लैंग्वेजेस, तो ये 4 को एक्सीड नहीं करना चाहिए था। यहां से हमको ये पता चल गया कि P एंड S कैन नॉट बी टुगेदर इन टीम 1। टीम 1 में P और S साथ में नहीं आ सकते हैं, बट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि P एंड S आर टुगेदर एग्जैक्टली 2 टाइम्स। यहां से हिंट मिला कि P और S जो टुगेदर है वो टीम 2 और टीम 3 में होंगे। आई होप यहां तक समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। अब यही हमारा लॉजिक है जिसको लेके हम आगे चलेंगे। अब नाउ वी हैव गॉट हाउ मेनी मेंबर्स इन टीम 3, 3 मेंबर्स हो चुके हैं, है ना। और क्वेश्चन में बोला गया था कि 2 और 3 मेंबर्स इन ईच टीम, तो 4 तो नहीं हो सकते, तो वी कैन सिंपली क्रॉस दिस एज वेल। T तो हम नहीं आ सकता इसकी, फाइन। अब इन्होंने कौन कौन सी लैंग्वेजेस कवर कर ली एक बार वो भी देखते हैं। नाउ S कैन स्पीक हाउ मेनी लैंग्वेजेस, 2, B एंड D, तो B में एक टिक होता है और E में एक टिक होता है, फाइन। उसके अलावा you can speak D and E, so D, E we have already taken, and next is P can speak C and E, so C, E we have already taken. अब A नहीं स्पीक कर सकते ये टीम, रीजन बीइंग 4 लैंग्वेजेस हो चुकी हैं, और F भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आते हैं, F जो लैंग्वेज है वो 2 टीमें थी जो बोल सकती थी, टीम 3 तो नहीं बोल सकती है, डेट मीन्स टीम 1 होगी जो F बोलती होंगी एंड टीम 2 होगी जो F बोलती होगी, फाइन। ई लैंग्वेज तीनों टीम में, इंग्लिश लैंग्वेज तीनों टीम में बोलती होगी, तो तीनों में टिक आना चाहिए। चाइनीज के लिए भी तीनों टिक होने चाहिए थे, डी के लिए केवल एक ही टिक होना चाहिए था, वो हो चुका है, तो वी कैन सिंपली क्रॉस दीज 2 ब्लॉक्स, फाइन। अब द कंफ्यूजन इज हियर, टीम 3 हमको डेफिनेट जो टीम 3 है वो हमें पता चल चुकी है, फाइन। द कंफ्यूजन इज कि जो ए टीम 1 और टीम 2 है उनमें कौन से और प्लेयर्स होंगे। तो यहां से हम देखते हैं, टीम 2 की बात करते हैं, फाइन। अब देखिए टीम 2 में कौन कौन है, एस है, एस कौन कौन सी लैंग्वेजेस स्पीक कर सकते हैं, बी एंड डी, तो बी में भी टिक करना चाहिए फिर तो, और बी में टिक हो गया तो 4 लैंग्वेजेस हो चुकी है टीम 2 की, तो ये अपने आप क्रॉस हो जाएगा। ये क्रॉस हो गया तो अब ए के पास एक ही ऑप्शन बचा है टीम 1 में आने का, और टीम 1 में जैसे ही ए आता है तो ए में टीम 1 में भी 4 लैंग्वेजेस हो चुकी है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो हमें लैंग्वेजेस का पूरा पता चल चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ए लैंग्वेज केवल आर बोल सकते थे, तो हमने आर को यहाँ पे टिक कर रखा है, फाइन। और क्या कर सकते हैं हम, बी लैंग्वेज एस बोलते थे, तो एस यहाँ पे टिक हो रखे हैं, ठीक है। अब इस तरह से हमको टिक करना है। अब जो ऑप्शन है हमारे पास टिक करने के वो क्या क्या है, एक बार उन पे फोकस करते हैं। जो टीम 2 है उसमें वी ऑलरेडी है एस एंड पी, और एस और पी होने की वजह से जो लैंग्वेजेस हमारी कवर हो गई है वो कौन कौन सी, एक बार वो भी चेक करते हैं। एस की वजह से लैंग्वेजेस कवर्ड आर बी एंड डी, एंड पी की वजह से सी एंड डी। तो अब हम देखते हैं कि एक और मेंबर जो आने वाला है वो कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज ऐड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, कोई बार चेक कर लेते हैं। तो सपोज टी इज इन दिस टीम, अब यदि टी भी आ जाते हैं इस टीम में तो टी कैन कवर सी एंड एफ, तो 4 लैंग्वेजेस हो जाएंगी, यहां तक कोई इश्यू नहीं है क्योंकि 4 लैंग्वेजेस हो सकती थी। सपोज टी के अलावा मैं कोई दूसरा लेता हूं, तो ए बी सी डी में से ए बी सी डी ई एफ, है ना, और उसमें से जो एस और पी थे उन्होंने कौन कौन सी कवर कर ली थी, एस ने बी और ई कवर कर ली थी, एंड पी ने सी एंड ई कवर कर ली थी, तो ये लैंग्वेजेस कवर हो चुकी थी। नाउ सपोज आर इज इन दिस टीम, टीम 2 में आर भी है, अब आर कौन कौन सी लैंग्वेजेस कवर कर लेंगे, ए और एस कवर कर लेंगे, तो इन टोटल 5 लैंग्वेजेस हो जाएंगी टीम 2 में, वो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब आर यहाँ पर नहीं आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पर यदि मैं क्यू को प्लेस करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं आर की जगह एक बार क्यू को प्लेस करके देख लेते हैं, तो क्यू आते हैं। अब क्यू कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, डी एंड ई, डी एंड ई, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर ये हो सकता था, पर यहाँ पर एक और इश्यू आ गया, इन्होंने बोला था डी लैंग्वेज केवल एक ही टीम स्पीक कर सकती है, तो यदि क्यू को हम यहाँ टिक कर देते हैं तो 2 टीम्स हो जाएंगी, फिर इसका मतलब यहाँ पे ना आर आ सकता है ना क्यू आ सकता है, तो दैट मीन्स हियर टी विल कम, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं टीम 1 पे। अब टीम 1 में कौन कौन आ सकता है वो हमें देखना है।
टीम 1 में जो लैंग्वेजेस हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ए हो सकती है, सी, ई एंड एफ, ये लैंग्वेजेस हो सकती है। अब टीम 1 में आर इज ऑलरेडी देयर, आर ने कौन कौन सी लैंग्वेजेस कवर कर ली है, ए एंड एफ, ठीक है। अब नाउ सपोज हम टी को ले लेते हैं, नाउ टी आते हैं तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस कवर हो जाएंगी, और इनफैक्ट वी कैन डू वन थिंग, अब इन तीन में से जो तीन लेफ्ट ओवर हैं पी एस टी, उनमें से वी नीड टू सिलेक्ट 2, राइट। नाउ वो 2 कौन कौन हो सकते हैं, इधर पी एस और टी एस और पी टी। इनकेस हम पी एस लेते हैं तो वो हम ले नहीं सकते हैं, रीजन बीइंग पी एस टुगेदर ओनली फॉर 2 टाइम्स, जो हम 2 बार ले चुके हैं, तो पी एस का ऑप्शन खत्म होता है। नाउ इधर वी कैन हैव द टीम ऑफ आर एस टी और वी कैन हैव द टीम ऑफ पी टी आर, ये 2 टीमें हमारे साथ हो सकती है। चलिए चेक करते हैं। अब आर एस टी टीमें होती हैं और पीटीआर टीम होती है, तो क्या क्या हमारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कोई बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो टी कैन कवर सी एंड एफ, सी और एफ कवर कर दी लैंग्वेज, एस कैन कवर बी एंड डी, डी और ई कवर हो गई है, एंड आर कैन कवर ए एंड एफ। तो यहाँ पे 5 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इसका मतलब दिस टीम कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और यदि हम पीटीआर कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, ठीक है, पीटीआर कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, तो पी कैन कवर सी एंड ई लैंग्वेजेस, ये हो गई है, टी कैन कवर सी एंड एफ, ये हो गया है, एंड आर कैन कवर ए एंड एफ, ये हो गया है। तो आप देखेंगे केवल 4 लैंग्वेजेस हुई है जो हम चाह रहे थे। तो इन टीम 1 वी हैव पी, टी एंड आर। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो दिस वाज अ डिसेंट सेट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कह सकते इसको, है ना, और एकदम इजी भी नहीं कह सकते, तो दिस वाज डिसेंट। तो नाउ मूविंग टू क्वेश्चंस। अब एक बार सेट कंप्लीट हो गया तो क्वेश्चंस तो जल्दी से कंप्लीट हो ही जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक बार मैं दोबारा फिल कर देता हूं ये वैल्यू, सो दैट वी कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन। टी वाज इन टीम फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड में नहीं थे, एस वाज इन सेकंड एंड थर्ड, आर फर्स्ट में थे, इन दोनों टीम में नहीं थे, क्यू वाज इन टीम 3 ओनली, एंड पी वाज इन ऑल द 3 टीम्स। यहाँ पे बात करें हम तो इस तरह से कुछ था, बी केवल 2 टीम बोल सकती थी, वो थी 2 and 3, चाइनीज तीनों टीम्स बोल सकती थी, इंग्लिश भी तीनों टीम्स बोल सकती थी। नेक्स्ट इज आपका डी, वो हमारी 2 टीम्स कर सकती थी केवल, और उसके बाद एफ, एफ इज दिस एंड ये। Okay, so moving to first question. Who among the following 4 is not a member of team 2? Team 2 का member कौन नहीं है? R और Q में से जो भी होगा वो ऑप्शन होगा। S है, P है, T है, Q नहीं है। So answer is option 2. Fine. Next question पे आते हैं। Okay, तो next question क्या कह रहा है हमारा? Who among the following 4 people is part of exactly 2 teams? Exactly 2 teams का part कौन कौन है? S exactly 2 टीम के पार्ट है, Q exactly 1 टीम के पार्ट है, R exactly 1 के ही है, और P तो 3 के हैं। exactly 2 टीम का आंसर इज ऑप्शन 2 S। फाइन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following 5 people is a member of all the teams? All the teams के member, so I think P is the answer. P तीनों टीम में प्रेजेंट है। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज P. Last question of this set. Okay, apart from Chinese and English, apart from these 2 languages, which languages are spoken by team 1? Team 1 Chinese और English के अलावा और कौन-कौन सी languages बोल सकती हैं? I think answer is A and F, Arabic and French. Option second is the correct answer. So I hope आपको ये set clear होगा। In case आपको कोई भी डाउट है, then you can get back to us. आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video.